have done this introduction to Kotlin, the pathway one. If you have any problem or doubts related to this, then you can ping me or you can ask your doubts later in this session only. Then on the pathway two, we have introduction to Android Studio. This is a video that you can see, or you can means you should see that video. Okay, so then we have download and install Android Studio. So I hope that everyone have installed Android Studio. Is there anyone who have not installed this Android Studio or face any issues while like installing Android Studio? Okay, like so I guess all of us have installed, or if you have like any problems you faced, or if you are struck at some like if you are struck at any like any path, then you can ping me. Then we have create or run your first app. Okay, so run your app on mobile device. I think these videos are like sufficient for you to like you can means you can go through these videos and you will be able to run the emulator also, and you will be able to run the application on your mobile device also. So I will be making an app on live session, and you will like I will demonstrate you how what is Android Studio and what are the different layers of Android Studio. I will demonstrate it. So then I hope like pathway 2 will be easy for you. Then I will be continue to pathway 3. So it's a video in a first, and like you are requested to see this video later. I will be starting with this code lab, that's birthday card app. So see, like uh, okay, so there are some concepts I think you should be able to like recognize in and like in Kotlin. So I hope that all of us are like means we are good. We are now comfortable with Kotlin language, and we can write some steps to do our task in Kotlin. So yeah, so in the first pathway there is one thing like repeat. I hope many of us have done this. So, like, can anyone tell me that what will this do? Like, what will it do? This repeat. Okay, yeah, yeah. It will print that mark 25 times. See, so it printed that mark 25 times. So I think this is also like easy task for you. Then we have if statements like if x equals to 5.6, then we will print value is correct, else so like many of us are like comfortable with C or C++, then it's easy for us. Like if like agar x की value 5.6 hai, like if x equals to 5.6, then it will like this statement will be printed, else this statement will be printed. So this is also easy. Now this also one more thing, like when, right? Let's take us one.
Okay, let's remove this. Okay, so we have written like when and this value, like value of x is 1. We know x equals to 1. So यहाँ पे एक तरफ से 1 है, when 1, तो it will be corresponding to this value. Like अगर हमारी यहाँ value 2 होती तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होती खाली, like value is 2, this will be printed. और like so ये जो ये h है ये ये कीज पे मैच होगा, like 1 2 3, here we will be writing what we are expecting, and here we will be writing what the output should be or what should it do when it will meet our expectations, right? So like हमें यहाँ पे 1 पे कुछ और करवाना है, लाइक जैसे ही लाइक अगर हमारी h की वैल्यू यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ 1 होती तो ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट होती, तो यहाँ पे हमें मान लो यहाँ पे वैल्यू इसकी 3 करवा देनी है, h की वैल्यू 3 हो जाएगी यहाँ पे, then we will be printing h value and suppose like see, so we got the value of h as 3 क्योंकि h की वैल्यू 1 थी, 1 पे यहाँ पे when h like यहाँ पे 1 आया तो ये this line will be executed, and यहाँ पे हमने h को 3 assign कर दी है वैल्यू, so h will be 3 now. Similarly like अगर यहाँ h 2 होता तो this line should be executed, तो ये एग्जीक्यूट होती तो खाली ये प्रिंट होता, और ये मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा फिर, लाइक रीअसाइन नहीं होगी वैल्यू, खाली ये प्रिंट होगा बस, और यहाँ h की वैल्यू प्रिंट होगी जो कि है 2 हमारी. ओके, लाइक आई शुड हियर प्रिंट ln. See, the value is 2. So this statement is printed first, like when h जो कि हमारा 2 है, so this statement will be printed. Then जब हम इससे बाहर आ जाएंगे और कोई मतलब सेटिस्फाई होनी है तो हम इससे बाहर आए तो this will be printed. So value of h is 2 here. So I hope this is also clear now. Okay, so those who are having problems or facing any issues, then we will discuss it later on the VC of Discord, or you can ping me on Telegram. I hope this concept is clear for everyone. Okay. So, like, I have shared my whole screen now, and uh, so I'm opening Annual Studio now. So while opening, we will be facing this screen, this dialog box, and so हम नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए we will be clicking on this new project. So always like जब भी प्रोजेक्ट बनाए तो like for the basic एक्टिविटी हमें पहले से देगा. हम एक्टिविटी देखेंगे आगे की एक्टिविटी क्या होता है, पर लाइक जैसे भी कुछ भी बनाते हो हम तो एम्प्टी एक्टिविटी स्टार्ट मतलब सेलेक्ट करते हैं पहले. ऐसे ही बेसिक एक्टिविटी होती है जो हमें ऐसा यूआई देती है, लाइक जो भी यहाँ पे है हैं. Here name which can be changed later, so let we are going with basic app.
सो दिस इज पैकेज नेम। सो हर एक ऐप के लिए एक यूनिक पैकेज नेम होता है, जो मतलब पैकेज नेम होता है वो उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका वो ऐप होता है। सो पैकेज नेम वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल यूनिक होता है, तो उन्हें वो ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर होता है वो ऐप उस पैकेज नेम से। सो इट इज यूनिक फॉर एवरीवन, तो मतलब फॉर द जनरल पर्पस com.example. एप्लीकेशन नेम इज यूज्ड, ठीक है। और दिस इज अ सेव लोकेशन, जहां हमारा मतलब एप्लीकेशन की पूरी फाइल सेव होंगी। एंड देन फॉर लैंग्वेज वी विल बी गोइंग विद Kotlin, then minimum SDK will like, so they are like many Android devices. I hope my screen is visible. Please check repeat one. I missed you to internet connection. Okay. तो ये हमारा जो x है उसमें हमारी टू वैल्यू है, ठीक। वैल्यू हमारी टू है x में, तो ये रिपीट x मतलब रिपीट होगा टू टाइम्स। जो ये स्टेटमेंट है या रिपीट के अंदर हम जो भी लिखेंगे, लाइक कुछ और भी लिखा, रिपीट स्टेटमेंट एक्सिक्यूटेड, तो हमने लाइक रिपीट फंक्शन में गए तो इसके अंदर जो भी होगा वो लाइंस प्रिंट रिपीट होंगी सारी, कितने टाइम्स, जितने जो भी हम वैल्यू यहाँ देंगे इसके पैरामीटर्स में, उतने टाइम्स इसके अंदर जो भी है वो सब रिपीट होगा। सो लेट्स लाइक रन इट। या सो पहले ये हुआ रिपीट स्टेटमेंट एक्सिक्यूटेड, देन इतना पहले उसमें बार में हुआ, x की वैल्यू 2 थी तो ये दो बार रिपीट हुआ, तो पहले बार ये हुआ, देन ये रिपीट हुआ इतना, then 2 is like we got 2 in output because of this, ठीक। लाइक हम यहाँ अगर 4 दे देते हैं तो विल लाइक हमें 4 टाइम्स मिलेगा। फिर हम यहाँ प्रिंट एलन लिखते हैं क्योंकि हमें एक लाइन में चाहिए, ये भी लाइन में लेते हैं क्योंकि इसके बाद फिर एक लाइक लाइन ब्रेक हो जाएगी। अब देखना, अब हमारे अलग अलग लाइन में आएंगे, देखो रिपीट स्टेटमेंट एक्सिक्यूटेड, ये एक बार हुआ, ये दो बार हुआ, ये तीसरी बार हुआ, फिर ये चौथी बार हुआ, तो हमने यहाँ 4 दिया था इसलिए 4 बार रिपीट हुआ वो टास्क। So I think it's clear now. So SDK, like there are many Android devices. एक होगा Android device जो 2010 में भी आया होगा. One Android device can be introduced in 2012, and there are Android devices that are introduced in 2021. So हर Android device के अलग अलग features होते हैं जो उसमें एक फीचर नहीं होते हैं, लाइक जो यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है पीयर टू पीयर, लाइक मतलब जो स्क्रीन छोटी हो जाती है, लाइक P2P होता है, स्क्रीन उसमें छोटी हो जाती है, तो वो हमारा लाइक 2 या 3 साल पहले ही आया वो फीचर एंड्रॉयड में भी। तो वो API 29 API 28 इसमें आया होगा, तो हम लाइक API पहले से डिसाइड करते हैं कि हमें ये वाले API के लिए ऐप बनाना है, लाइक ये वाले API से लेके अब तक जो भी हो रहा है यहाँ तक ऐप बनाना है हमें, तो इसलिए हम API लाइक यूज करते हैं। तो 24, और हाँ जैसे यार ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 89% ऑफ डिवाइसेस, क्योंकि API 24 के लिए 89% डिवाइसेस अवेलेबल है। देन लाइक जो भी लेटेस्ट API है लाइक एंड्रॉइड 12, इसके लिए 1% से भी कम डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक 1% से भी कम लोग यूज कर रहे हैं API 31 वाली डिवाइसेस। ओके, एंड्रॉइड स्टूडियो लाइक एम्प्टी एक्टिविटी बनानी होती है हर बार। ओके, अभी मैं इसके बाद देखता हूँ। सो या सो 31 API से मतलब 1% से भी कम डिवाइसेस हैं हमारे पास जो API 31 को टारगेट करते हैं। तो हम लाइक कुछ भी अगर हम लाइक
एपीआई 17 यूज कर लेते हैं। तो इसमें हम जो भी मतलब जो भी नया फीचर है वो तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जो एपीआई 17 के जो डिवाइसेस होंगे, तो उसमें जो भी मतलब जो डिवाइसेस होंगे उसमें और कोई नया फीचर तो हम अपने ऐप में डाल नहीं सकते ना, क्योंकि वो सपोर्ट ही नहीं करेगा वो वाला फोन। तो मतलब हम जनरली जो जनरल बेस्ड एपीआई लेवल होता है हम वो सेलेक्ट करेंगे। जनरल बेस्ड लाइक 24 और 26, जहाँ भी मतलब जहाँ पर हम पहले अपने ऐप को देखेंगे, जो भी हमें फीचर टारगेट करना है, लाइक जो भी मतलब लाइक फीचर्स वगैरह होंगे हम उसको लिस्ट डाउन कर लेंगे, उसमें से जो भी मतलब हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एपीआई में, वो एपीआई के साथ हम जाएंगे। लाइक हम अभी एपीआई 24 के साथ कर लेते हैं, मतलब अभी तो फॉर द टेस्टिंग पर्पस, फॉर द लर्निंग पर्पस यू कैन गो विद एनी ऑफ द एपीआई, फॉर द जनरल यू कैन गो फिर with API 24. Then we will go with okay, so let me tell him what activity we should use. मैंने यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो खोला। सी, ये न्यू प्रोजेक्ट पे गए तो यहाँ नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। लाइक हमें एम्प्टी एक्टिविटी चाहिए, क्योंकि एम्प्टी एक्टिविटी हमें पहले से एक एक्टिविटी बनाते देती है जो कि पूरी एम्प्टी होती है। लाइक हम बेसिक एक्टिविटी पे बॉटम नेविगेशन, ये इसमें से जो भी यहाँ यूआई तुम्हें दिख रही है ये पहले से बना हुआ होगा, उसमें इम्प्लीमेंटेड होगा उनकी तरफ से। So this is our Android Studio finally opened. Yeah. So like this is very very heavy software. ये मतलब तुम्हारे डिवाइसेस में लाइक हाफ एन आवर भी ले सकता है खुलने में। और लाइक जो मेरा पहला वाला लैपटॉप था उसमें तो ऐसे ही 20 to 25 मिनट्स लेगा था खुलने में। और ये मैक है इसलिए थोड़ा इसमें जल्दी खुल गया है। बिल्ड ट्रेडल्स वगैरह होंगे या लाइनक्स पे अच्छा चलेगा काफ़ी। हाँ, it will like also consume the data. सो अभी तैयार हो रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो। सो एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे ही खुलता है मीन्स इसके लिए बहुत सारे ग्रेडल्स फाइल्स होती हैं जो कि ये बहुत सारी जनरेट करता है। और भी बहुत सारी इसकी फाइल्स वगैरह जनरेट होती हैं, बैक में काम हो रहा होता है। तो फॉर दैट्स पर्पस इट टेक्स सो मच मेमोरी और सो मच टाइम टू ओपन अप। या मीन्स हम एपीआई वो यूज़ करते हैं जो कि मतलब ज़्यादा कवर हो, पर उतनी भी मतलब लाइक ऐसे तो हम जो सबसे पुरानी एपीआई है वो भी ले सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि लाइक उसमें हम जो मॉडर्न फीचर्स है वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो हम कोई ऐसी जनरल एपीआई मतलब यूज़ करते हैं जो बीच बीच में हो, लाइक जहाँ हम लाइक एडवांस फीचर्स भी यूज़ कर सकें और जो ज़्यादा मार्केट को भी कवर करे। सो या सो ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो खुल गया है लकीली। और इतनी जल्दी खुल गया, आई एम सो ग्लैड। सो या हम जो भी मतलब अपना कॉटलिन कोड होता है जो भी हम ऐप बनाने के लिए लिखते हैं वो हमारा इस विंडो में लिखा जाता है, इस फाइल में लिखा जाता है जो कि है मेन एक्टिविटी। सारा कॉटलिन कोड इसमें लिखा जाएगा और इसमें हम लाइक मोर एक्टिविटीज कैन बी एडेड, जो कि हमारे जावा फोल्डर में होती है। जावा फोल्डर, देन कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट फर्स्ट ऐप, देन मेन एक्टिविटी। इसको हम रीनेम भी कर सकते हैं मेन एक्टिविटी को।
जो भी ये लिखा है हम इसके मतलब इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे. लेट्स गो टू मेन एक्टिविटी. एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन. खुल जा. Okay. So yeah, this is the layout part. Yeah. So this is the layout part, like what will be shown on the UI of your screen, or how the app will look like on your like device. So ये हमारा पूरा हम ये अपने जो भी ऐप की यूआई होगी, जो भी ऐप में हम अपना मतलब बटन्स वगैरह लाना चाहते हैं, लाइक टेस्ट व्यू लाना चाहते हैं, वो हम सब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे बनाएंगे. लाइक अभी यहाँ से पहले से डिफॉल्ट में टेस्ट व्यू आता है जो कि मैंने डिलीट कर दिया है. फिर से देखो ये टेस्ट व्यू है, इसको मैंने ड्रैग करा यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, तो ये हमारा टेस्ट व्यू यहाँ पे ऐड हो गया. ये अब इसको ये अब वो ये हमारा कंस्ट्रेंट लेआउट है जो कि ये पूरे स्क्रीन पे टारगेट करता है. ये जो पूरी स्क्रीन है, ये पूरी स्क्रीन है, इसको हम एक एक कंटेनर होता है ये एक तरफ से, उस कंटेनर के लिए हम पूरा टारगेट देते हैं कि उसमें हमें मतलब उसमें हमें कुछ चाहिए जहाँ पे हम अपने व्यूज वगैरह ला पाए. जो भी ये सब है लाइक बटन्स, इमेज व्यू, रिसाइकलर व्यू, ये हमारे व्यूज होते हैं. और इन व्यूज को मतलब जो एक बांध के रखता है अपने पास, वो अपना व्यू ग्रुप होता है जो कि यहाँ हम कंस्ट्रेंट लेआउट है जो डिफॉल्ट वो एंड्रॉइड स्टूडियो हमें बना के देता है. अब हमने वहाँ एम्प्टी एक्टिविटी यूज करी थी, तो हमें उसने एक्टिविटी ये पहले से बना के दी है. ठीक. अगर मानो हमने बिल्कुल नो नो एक्टिविटी यूज करी होती तो हमें मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं बना के देते, हमें ये मैनुअली बनानी पड़ती. फिर हमें ये एक्टिविटी बना के दी गई हुई है. ये हमारे स्क्रीन का ब्लूप्रिंट होता है जहाँ पे हम पूरा मतलब डिस्टेंस वगैरह देख सकते हैं कितना है. और हाँ, यहाँ पे ब्लूप्रिंट है जो हम मतलब यहाँ पे सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि कितना दूर है. सो ये मतलब आगे तुम्हें पता चल जाएगा ब्लूप्रिंट क्यों है और ये क्यों है. ठीक. सो दिस इज अवर यूआई स्क्रीन. लेट्स रन इट. अब देखो एमुलेटर भी बना ही लिया होगा ज्यादातर लोगों ने, और जिसने नहीं बनाया तो यहाँ से ये इधर एवीडी मैनेजर है. एवीडी मैनेजर एवीडी मैनेजर पे जाते हैं तो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस आता है. तो क्रिएट वर्चुअल डिवाइस पे जाओगे तो यहाँ पे अलग एमुलेटर्स आएंगे बहुत सारे कि तुम्हें कौन सा एमुलेटर बनाना है. तो यू कैन गो फॉर इट एंड इट विल ऑल्सो टेक 3 to 4 GB. Sorry for interrupting in between, but हाँ हाँ. suddenly I have a meeting, so I need to leave this session here itself. Uh, should I leave? Would you manage till the end? Yeah, you can leave. Thank you so much, Pawan. Okay, thanks. Bye bye. Yeah. Do Android Studio also uses our network bandwidth while be? Yeah, it would require a network connection, like it would require your net, because there are many files that Android Studio wants to download. Please repeat the emulator part. और तुम्हें कोई भी एमुलेटर बनाना है, अभी मैं तुम्हें एमुलेटर दिखाऊंगा. एवीडी मैनेजर है ऊपर सबसे. एवीडी मैनेजर पे जाओ तो ये मेरे एमुलेटर पहले बन रखे हैं दो, जो कि 12 GB मेरे इस पे स्पेस ले रहा है. API 30 का फोन है जो. अब तुम्हें कोई नया बनाना है तो क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस यहाँ है. इज इट नेसेसरी? नितिन, किसके लिए कह रहे हो कि इट इज नेसेसरी? मतलब एमुलेटर बनाना नेसेसरी पूछ रहे हो या क्या पूछ रहे हो? प्लीज स्पेसिफाई. हाँ, एमुलेटर और तुम्हारे पास रियल एंड्रॉइड डिवाइस है, देन यू कैन गो फॉर रियल एंड्रॉइड डिवाइस. फॉर दैट यू रिक्वायर्ड अ USB एंड एंड्रॉइड डिवाइस.
तो उससे भी तुम्हारा मतलब जो ऐप है वो तुम्हारे डिवाइस में आ जाएगा। एमुलेटर खाली स्क्रीन के लिए होता है, जो हमारी स्क्रीन में दिख पाए। हाँ, यू कैन यूज योर एंड्रॉइड डिवाइसेस, या okay. I will tell you the process afterwards. Okay, actually I don't have an Android device, so I'm using iOS device, so I will tell you in next session. I will arrange an Android device and I will tell. But yeah, you can get बहुत सारी वीडियोस में यूट्यूब पे, और इनके मतलब जो एंड्रॉइड स्टडी जेम्स का पाथवे 2 है उस पे लिखा हुआ है कि अपने जो रियल एंड्रॉइड डिवाइस है उस पे कैसे ऐप इंस्टॉल करना है और डिबग करना है, उस पे लिखा हुआ है। और यू कैन लाइक यूज यूट्यूब वीडियोस आल्सो। तो हाँ, लाइक आई विल रिकमेंड कि जो भी मतलब एमुलेटर बनाओ अगर, तो प्ले स्टोर वाला ही बनाना, जिसके मतलब प्ले स्टोर में ये वाला साइन होगा, वही वाला बनाना है एमुलेटर, ठीक है। तो लाइक एमुलेटर भी बनाओगे तो अब देखो, जैसे ये ऐप है जो हमारा बेसिक लेआउट पहले से बना हुआ है। अब इसको मैं रन करता हूं, तो रन होगा, ये ग्रीन बटन है रन ऐप ऊपर, इधर दिख रहा है, ये ग्रीन बटन है ऊपर रन का, इसको क्लिक करो तो रन होगा ऐप हमारा। लाइक मेरा एमुलेटर खुल चुका है, आई होप स्क्रीन इज विजिबल। So it will take little time to like install or debug our app, because पहले वो सारे डिपेंडेंसीज वगैरह चेक करता है, फिर ग्रेडल फाइल्स इंस्टॉल करता है, तो ग्रेडल फाइल्स रन करता है, फिर बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो वो करता है एंड्रॉइड स्टूडियो। तो लाइक इसको एमुलेटर पे चलाने के लिए थोड़ी मतलब प्रोसेस होती है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट यू नीड टू बी वेरी पेशेंस इन एंड्रॉइड। What is the reason for selecting only those apps which have Play Store icon besides them? ओके, सो मतलब रीजंस हैं, बिकॉज लाइक प्ले स्टोर होगा तो मतलब जो प्ले स्टोर लाइक मैं एक बता रहा था, जो ए आर लाइक जो आर्गुमेंट रियलिटी होती है उस बेस पे वो ऐप था, पर वो वाले मेरे लाइक एमुलेटर में वो नहीं था। लाइक उसके लिए एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होती है और प्ले स्टोर होना चाहिए, तो लाइक प्ले स्टोर नहीं था उसमें, तो वो ए आर वाला ऐप चलाने में दिक्कत आ रही थी बहुत, इसलिए फिर दूसरा एमुलेटर मुझे बनाना बनाना पड़ा जिसमें प्ले स्टोर है। फॉर द बेसिक एप्स, या यू कैन गो फॉर द एमुलेटर्स व्हिच आर विदाउट दैट प्ले स्टोर पार्ट, but if you want like certain features like AR, augmented reality in your app, then you have to go for Play Store once. So ये हमारा ऐप बन चुका है, देखो ये हमारा फोन में ऐप आ गया है, सेम टू सेम। देखो जैसे यहाँ स्क्रीन बनी हुई है वैसे ये स्क्रीन है, ठीक। सो ऐसे ही मतलब प्रोफेशनल डेवलपर्स भी ऐसे ही लाइक बिल्ड करते हैं, ऐसे ही चलाते हैं ऐप, अपना टेस्ट करते हैं, इसी एंड्रॉइड स्टूडियो पे बनाते हैं ऐप। सो लाइक सर प्लीज रिपीट एमुलेटर पार्ट। Okay, so in the last I will be repeating the hints, okay, because we are going ahead of time already. So ये मेन एक्टिविटी लाइक ये RES में जाके रिसोर्स फोल्डर होता है, ये इसमें जाएंगे तो लेआउट में जाके एक्टिविटी मेन होगा, लाइक ऑन योर लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी एक्टिविटी मेन डॉट HTML। यहाँ पे हमारा ये पूरा स्क्रीन्स वगैरह होंगी जहाँ हम डिजाइन कर सकते हैं अपना, और ये जावा फोल्डर में मेन एक्टिविटी है, या हम अपना कोड लिख सकते हैं, जो कि वी विल डिस्कस इट लेटर। और यहाँ एक ये ऐप लेवल का वो है, इसके अंदर मैनिफेस्ट फाइल होती है एक, जहाँ पे हम अपनी जो भी हम लाइक कुछ भी हमारा वो होता है, लाइक हम उसको परमिशंस देते हैं। लाइक अगर हमारा ऐप इंटरनेट कनेक्शन यूज करना चाहता है तो हम यहाँ पे अपनी परमिशन देंगे कि या अवर ऐप हैव टू लाइक अवर ऐप हमारा इंटरनेट की जो जो भी कनेक्शंस हैं वो हमारा यूज करेगा, लाइक। और अगर हमारा ऐप हमारा मेमोरी फोल्डर और गैलरी हमारा यूज करना चाहता है तो यहाँ हम परमिशंस देंगे पहले से कि हमारा ऐप गैलरी यूज करेगा फोटोज वगैरह लेने के लिए। तो लाइक अपना जो एंड्रॉइड स्टूडियो, लाइक हमारा जो एंड्रॉइड वो होता है सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम,
उसको पता रहता है इस वजह से कि हमारा जो ये ऐप है, ये वाला जो ऐप है, ये मतलब इंटरनेट कनेक्शन यूज करेगा, ये ऐप रीड राइट करेगा मेमोरी, तो उससे पता चल जाएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को। तो थोड़ा मतलब you will get those things afterwards and you will be dealing with network provider or many other things. Okay, please God explain app coding part once. Before but brother explain this app coding part once. Yeah, जो भी मतलब ये लिखा हुआ है, I will explain what is this. ओके, सो लेआउट में हमारा ये पूरा डिज़ाइन है। और हाँ, लाइक हमें यहाँ बटन यूज़ करना है, तो हम बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, जहाँ भी हमें यूज़ करना है। तो यहाँ बटन आ गया, देखो। अब बटन लाइक ये जो भी व्यूज़ हैं, ये हमारा ये पूरी स्क्रीन है, तो इसमें फ्लोटेबल है। लाइक हम इसके लिए, इसमें अभी ये रेड मार्क आ रहा है, इधर देखो। रेड मार्क इसलिए आ रहा है क्योंकि फॉर दिस व्यू द कंस्ट्रेंट्स आर मिसिंग। जो ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट होता है, इसमें हमें कंस्ट्रेंट देने होते हैं अपने व्यूज को। लाइक हमारा जो व्यू है ये यहीं बंधा रहे, तो हम इसको कंस्ट्रेंट दे देंगे। जैसे ये है, इसको कंस्ट्रेंट दे दिया है कि ये यहीं बंधा रहेगा अब, और इसको हम ऊपर ये वाले व्यू के साथ ला देंगे। अब ये दोनों एक साथ रहेंगे लाइक इस पे, ठीक है। और इसको हम यहाँ से भी दे सकते हैं, सेलेक्ट दिस। हाँ, ये देखो, ये हमारा इधर भी मतलब कंस्ट्रेंट हो चुका है। ये हमारा इधर से भी कंस्ट्रेंट हो चुका है, इधर से भी कंस्ट्रेंट हो चुका है। अब हमें ऊपर से लाइक हमारा ऊपर टेस्ट व्यू है और नीचे बटन है, उन दोनों में हमें थोड़ी सी गैप चाहिए, ठीक है। तो हम वो गैप कैसे देंगे? ये जो ऊपर 0 है, इसकी जगह हम 4 रख देते हैं, तो इसमें 4 टीपीस का गैप आ जाएगा हल्का सा। देखो तुम्हें दिख रहा होगा। अगर तुम्हें और गैप देना है तो लाइक इसको 40 कर दो, और देखो और गैप आ गया अब, ठीक है। तो ये जो भी है, ये मतलब डीपीस में काम होता है। अब अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीपी एंड एसपी? लाइक ओके, सो ये देखो, एक मिनट। ओके, सो वी विल कवर दैट लेटर। ओके, कि व्हाट इज जीपी एंड व्हाट इज एसपी, हम अपना कोर्स देख लेते हैं, उसमें क्या क्या है। वी विल बी गोइंग विद दैट। हाँ, कहाँ गया? हाँ, ओके, सो हमारा पहले बर्थडे कार्ड ऐप है बनाना। सो इसमें ये है जो, लेट मी डिलीट दिस, बटन को डिलीट कर दिया। इसमें जो भी है, इसमें हैप्पी बर्थडे लिख दो तो हैप्पी बर्थडे आ जाएगा, ठीक। देन टेस्ट यू टू लेआउट। हाँ, सो दिस हाउ टू कंस्ट्रेंट द लेआउट। ये है कि जो भी हमने यहाँ करा, लाइक इसे इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है। इसको नीचे जोड़ सकते हैं, इसको लाइक और यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। लाइक यहाँ प्लस पे गए, यहाँ प्लस पे क्लिक करा, ये 167 है जो, इसको हम छोटा करके 14 कर देते हैं, तो ये इधर 14 का गैप आ जाएगा थोड़ा, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब अलग अलग वेज हैं करने के। और हाँ, ये टीपीस में होता है। जो भी हमारा हम मतलब बटन है, बटन जैसे ये है, बटन को हम साइज देंगे। लाइक इसकी हाइट, हाइट देखो, इसकी लेआउट हाइट है 75 टीपी और लेआउट विड्थ है 178 टीपी। विड्थ और हाइट में फर्क तो पता होगा हमें। तो ये टीपी में क्यों है, इंच में क्यों नहीं है, ठीक। लाइक जो भी हमारे एंड्रॉइड की स्क्रीन है, वो हमें पता है कि छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एंड्रॉइड की स्क्रीन टैबलेट साइज जितनी भी होती है, एंड्रॉइड स्क्रीन छोटी सी भी होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन, मतलब अलग अलग फोन पे डिपेंड करता है ये सब, ठीक।
ये सब अलग अलग फोन पे लाइक डिपेंड करता है कि बटन्स जो भी होते हैं। तो अब ये बटन्स हैं जो अलग अलग, ये अब हर फोन में लाइक हम लाइक इसको हमने 75 TB दे लाइक 75 इंच दे दिया है। लेट्स सपोज हमने इसको 75 इंच दे दिया है, जो कि मतलब अभी मतलब इसमें लाइक वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। हाइट हमने 75 इंच दी हुई है, पर अब क्या होगा लाइक इसकी जो हाइट है वो फिक्स हो जाएगी। फिक्स हो जाएगी मतलब लाइक हमारे पास मान लो कि बड़ा फोन है, लाइक इतना बड़ा फोन है, बहुत बड़ा। तो इसमें जो ये है, ये इसका जो बटन है वो 75 इंच, इसका बहुत फटने लग जाएगा। ठीक, तो इसलिए हम मतलब जो अपना वो है डीपी में देते हैं, क्योंकि डीपीटी लाइक डीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। देखो कहाँ है, सो यहाँ है डीपी, इस वर्चुअल पिक्सल लाइक इसके डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल होते हैं ये। इसमें मतलब कैसे बताऊं अब तुम्हें, एक मिनट इस पे बता देता हूँ। डीपी डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल होते हैं लाइक हमारे जो भी ये होता है लाइक अलग जो भी स्क्रीन है जो अलग अलग है, हमने अपने यहाँ पे अपना एक फिक्स लाइक डीपी दे दी है। तो ये अब जो भी अलग अलग स्क्रीन होंगी, चाहे वो छोटी होंगी चाहे बड़ी होंगी, उसमें क्या होगा, जो भी ये डीपी है वो अपने आप पिक्सल्स को लेके मतलब पिक्सल से इंडिपेंडेंट होके वो अपने आप को कंस्ट्रेंट कर लेगा। लाइक यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो मतलब पिक्सल्स इसमें ज्यादा होते हैं जो स्क्रीन में, उसमें इतने से साइज में बहुत सारे पिक्सल हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इतने से साइज में बहुत कम पिक्सल हो। तो लाइक जिसमें ज्यादा पिक्सल है वो तो फिर फटने लग जाएगी ना बहुत सारी, और जिसमें कम पिक्सल है वो फिर बहुत ज्यादा मतलब कंस्ट्रेंसी हो जाएगी। तो हम डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल रखते हैं, क्यों? क्योंकि लाइक हर हर जो भी हमारे अलग अलग स्क्रीन होंगी, चाहे वो छोटी होगी बड़ी होगी, तो ये बटन अपने आप उस स्क्रीन में सरवाइव कर जाए, उस स्क्रीन में अपने आप को एडजस्ट कर ले। लाइक 75 DP हमारी बिल्कुल सही रहेगी। लाइक हर कोई भी स्क्रीन हो, 75 DP विल बी फिक्स्ड। लाइक पिक्सल पे कोई मतलब डिपेंडेंसी नहीं होगी हमारी व्यूज की। ठीक, और देन सिमिलरली लाइक ओके सो ज्यादा छोटा हो गया। ओके, सो ये बटन है और ये हमारा टच व्यू है, इसको भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा। हाँ, सो इधर हमारे एट्रीब्यूट्स वगैरह हैं, जो भी हमें एट्रीब्यूट्स देने होते हैं। लाइक ये लेआउट विड्थ है, इसको हम लाइक 152 DP है यहाँ, मतलब जो भी विड्थ है उसको हम मतलब उसका साइज जो भी होगा वो हम डीपीस में देंगे। ठीक, इसकी आईडी होती है एक, आईडी हम बाद में देखेंगे क्यों होती है और क्या होता है आईडी। देन ये कंस्ट्रेंट्स वगैरह होते हैं, फिर ये रोटेशन वगैरह देखना, विजिबिलिटी मतलब इनविजिबल करना है, विजिबल करना है, ये भी बाद में तुम्हें पता लगेगा क्यों होते हैं। देन इसकी जगह हम कुछ और लिखना चाहते हैं लाइक हैप्पी बर्थडे, बर्थडे। ओके सो साइज कहाँ है, सो और भी लाइक तुम्हें और भी व्यूज देखने हैं, तो ये और भी ऑल एट्रीब्यूट्स यहाँ आ जाएंगे, जो भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें। तो ऑटो टेस्ट, ऑटो साइज वगैरह बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक है, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, डिजिट्स, क्लिकेबल लाइक क्लिकेबल बनाना है। और व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज टेक्स्ट साइज। सो हेयर वी हैव टेस्ट साइज, हम इसको मतलब ये जो भी हमारा लिखा हुआ है इसका साइज कितना हो, लाइक हम इसको दे सकते हैं 20 SP। ठीक,
तो ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा अंदर टेस्ट, इसको और बड़ा कर देते हैं, रुको 40 240 40 SP। सो देखो ये बड़ा हो गया हमारा। तो ये अब क्या है, ये 40 SP हमने साइज क्यों दिया है, जो हमारा मतलब लिखने वाला साइज है वो हमने SP में क्यों दिया है, लाइक हमारा जो भी व्यूज है उसका जो भी हम हाइट या विड्थ देते हैं वो हम देते हैं DP में, और हमने जो भी लिखने वाला पार्ट होता है उसका हम SP में क्यों दिया है। देखो DP व्यू साइज होगा, SP हमारा टेस्ट साइज होगा। अब टेस्ट साइज का मतलब क्यों, मतलब SP क्यों, DP ही क्यों नहीं है। अब देखो हमारा जो टेस्ट साइज होता है, लाइक हमारा जो फोन होता है हम उसमें सेलेक्ट मतलब सेटिंग्स में जाके सेलेक्ट करते हैं कि हमें फॉन्ट कितना बड़ा चाहिए, लाइक हमें बोल्ड चाहिए, या कई हमारे फोन होते हैं जिसमें हम फॉन्ट्स अलग अलग कर देते हैं, जिसमें हम फॉन्ट छोटे कर देते हैं या बड़े कर देते हैं हमें दिखने के उससे, जो भी हमें सही लगता है। लाइक इसमें जो भी है ये अभी फॉन्ट नॉर्मल है, अभी इसको मैं छोटा कर दूंगा, ये देखो बहुत छोटा हो गया फॉन्ट। अब इसको मैं बड़ा कर दूंगा, बहुत बड़ा हो गया फॉन्ट, ठीक है। तो ये जो भी है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि कितना फॉन्ट होगा, हमारे पूरे हार्डवेयर हमारे पूरे सॉफ्टवेयर का जो भी एप्स है उसमें कितना फॉन्ट होगा हर चीज का। अगर हम DP कर देते तो हमारी ये दिक्कत आती कि फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको मतलब साइज नहीं दे पाता जो भी हमारा लिखा हुआ कंटेंट है, ठीक। अब मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने हार्डवेयर में अपना साइज बहुत छोटा कर दिया है, ठीक। अब वो SP है, लाइक जो भी हमने टेस्ट व्यू को साइज दिया वो SP में इसलिए दिया है ताकि SP फिर वो उसको मतलब रिकॉग्नाइज कर ले कि साइज छोटा हुआ है, तो वो साइज अपने आप के टेस्ट को भी छोटा कर लेगा साइज, तो इसलिए हम SP में देते हैं साइज, ठीक है। नहीं तो हम DP में देते तो वो फिर जो हम फॉन्ट की साइज जो छोटी करते हैं हार्डवेयर में, ऑपरेटिंग सिस्टम फिर उसको पता नहीं पाता कि हाँ भाई तुम्हें भी अपनी वो साइज छोटी करनी है, ठीक। So this is the difference between SP and DP. So so let's write for happy birthday app। ये मान लो हमने डिलीट कर दिया है, ठीक। ये हैप्पी बर्थडे किधर है, एक हमने टेस्ट व्यू और उठाया, एक हैप्पी बर्थडे और आ गया, ठीक। अब ये है, इसको हमने उठा के इसको भी हम साइज दे देते हैं कुछ भी लाइक 40 SP ही दे देते हैं, ठीक। और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब देखो इसमें भी ये आ रहा है रेड डेंजर साइन, तो इसको भी हमने कंस्ट्रेंट करना है, ठीक। इसको भी कंस्ट्रेंट कर देते हैं एक इसके साथ। इसके इधर भी कर सकते हैं, फिर इधर कर दिया, एक थोड़ा नीचे कर दिया, ठीक। हमें नीचे बहुत नीचे रखना है तो हम नीचे 0 DP दे देंगे, 0 दे देंगे ताकि बिल्कुल नीचे आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइक किसी का भी नाम लिख देते हैं, सपोज मैंने अपना लिख लिया अपनीत। तो ये हैप्पी बर्थडे अवनीत का वो आ गया एक। अब इसको रन करके देते हैं फिर से, लाइक ये जो है रन ऐप हो जाएगा इससे, अपने इसमें जो भी हमारा फोन है इसमें देखते हैं क्या होता है। सो सी हैप्पी बर्थडे अवनीत लिख के आ गया, जैसा हमने यहाँ पे डिजाइन करा था, सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही। I've made changes in layout, but when open the Android emulator, it did not show new changes. ओके वी विल लाइक लुक इनटू इट लेटर, लाइक मुझे डिस्कॉर्ड पे पिंग कर देना, VC पे ले लेंगे फिर उस पर बात कर लेंगे क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक। तो जैसा हमने यहाँ डिजाइन करा था वैसे यहाँ हो गया। अब मान लो हमें ये इसमें फोटो भी लानी है, कोई कुछ भी फोटो ला देते हैं इसमें, चलो
डाउनलोड कर लूँ पहले फोटो। ये हमारी फोटो ये सिस्टम में आ गई। तो हम जो भी मतलब हमारा ये होते हैं लाइक जो भी फोटोज वगैरह होती है, इसके लिए भी हमारे अलग फाइल्स होती हैं। हम लाइक एक ही फाइल में सब चीज़ें तो नहीं रख सकते ना, हमारे अलग अलग चीज़ें होंगी बहुत सारी। तो हमारे पास ड्रॉएबल फोल्डर होता है जहाँ भी हम अपनी ये चीज़ें रखते हैं, लाइक जो भी हमारा फोटोज वगैरह होंगी। तो हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो सीधा इसमें। ठीक, ये फोटो आ गई हमारी। एक और काम हो सकता है लाइक, ओके, ये जो रिसोर्स मैनेजर है इस पे गए, रिसोर्स मैनेजर ड्रॉएबल्स लाइक इस पे प्लस पे गए, प्लस पे इंपोर्ट ड्रॉएबल से सेटिंग्स आएगी, उस पे जाके हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं अपने डिवाइस से। ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है और सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप भी हो सकता है। अब मान लो हमारे पास ये फोटो आ गई है, हम अब इस पे गए अपने लेआउट पे, इस पे हमने वो फोटो लानी है। तो ये हमारे पास यहाँ जो भी पैलेट है इसमें अलग अलग व्यूज हैं। तो पैलेट से हम इमेज व्यू उठाएंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। आजा, तो हमने यहाँ से मतलब जो भी फोटो लानी है, ये हमारे यहाँ फोटो यहाँ पे आ गई HPD। तो हमने यहाँ उठा के इस पे ला दी, तो ये देखो ये फोटो आ गई। अब इसको भी हमें कंस्ट्रेंट करना है, तो इसको भी कर देते हैं। देखो देखो ये भी कंस्ट्रेंट हो गया। अब इसकी साइज भी हम बढ़ा सकते हैं, लाइक पूरे स्क्रीन पे फिट हो गया जैसे। ठीक, अब देखो ये इसकी साइज जो है वो वैसे तो छोटा है। अब हमें लाइक इसको पहले रन करके दिखा देता हूँ, रुको। मतलब ये देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट है ये हमारा छूट जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसका साइज ही इतना है। तो हम यहाँ पे स्केल फैक्टर होता है, स्केल टाइप, स्केल टाइप, स्केल टाइप पे जाके हम फिट्स चार्ट, सेंटर, और भी मतलब बहुत सारे इसमें लाइक फिट सेंटर पे क्लिक करा हमने, तो देखते हैं क्या होता है। लाइक फिट HY, ये देखो हमने फिट HY करा तो ये पूरी हमारी स्क्रीन पे आ गया। अब इसे रन करके देखेंगे तो हमारी पूरी स्क्रीन पे आएगा। बट इसमें अब क्या हुआ कि ये जो पीछे हमने वो हैप्पी बर्थडे अवनीत वाला लगाया था, वो हमारा बहुत मतलब छुप गया है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो व्यू ग्रुप है इसमें हमारा इमेज व्यू सबसे आगे है। तो हम इसे सबसे पीछे कर देंगे, लाइक हमें सबसे ऊपर कर दिया तो ये एक तरफ से सबसे पीछे हो गया। ये देखो और पीछे चले क्या। अब हमें अपना ये देखो ये हल्का हल्का सा तुम्हें दिख रहा होगा इसका, क्योंकि ब्लैक है इसलिए तुम्हें सही से दिख नहीं रहा है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब हैप्पी बर्थडे का कलर कर देते हैं। ये देखो ये टेक्स्ट कलर है,
यहाँ पे हम कुछ भी लाइक रेड या वाइट कर देते हैं। इसका देखो वाइट हो गया कलर। सो अब इसको रन करके देखेंगे तो हमारा एक अच्छे से आ जाएगा हैप्पी बर्थडे। यहाँ अवनीत है, इसका कलर भी वाइट कर देते हैं। तो हैप्पी बर्थडे अवनीत पूरा लिख के आ जाएगा। तुम ये मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट कर सकते हो ये ऐप। एंड मेरा बर्थडे भी आने वाला है, यू कैन गिफ्ट मी दिस ऐप। ओके सो ये देखो हैप्पी बर्थडे अवनीत। अब ये तुम्हारे पे है कि तुम कितना अच्छा इसे बनाते हो, कितना मतलब यूआई इसकी अच्छे से प्रेजेंट करते हो। ठीक है, ये सब तुम्हारे पे है। लाइक इसको और अच्छे से यहाँ पे स्केल करो, इसको फोटो को और अच्छे से लगाओ, जो भी मर्जी मतलब कर सकते हो तुम। ठीक, देन हमारा पूरा पाथवे ये वाला भी कंप्लीट हो जाना चाहिए इससे। ओके सो मतलब क्विज वगैरह कर लेते हो? मतलब क्विज तो कर लेना खुद, हो जाएंगे तुमसे, हो जाने चाहिए वैसे। अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ोगे हो जाएंगे, क्विज भी आसान है बहुत ज़्यादा। तो हमने बिल्ड का बेसिक लेआउट, ऐड बटन भी वैसे हमने मतलब बटन लाना सीख लिया है। क्लासिंग ऑब्जेक्ट्स तुम सबको मतलब सी और सी प्लस प्लस में तुम तो अभी पढ़ा नहीं होगा क्लासिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके या नो प्रॉब्लम, आई कैन रन इट ऑन एमुलेटर। Okay, happy birthday in advance, Ishan. So I will give you the APK of this app, okay? So you can take it as a gift from my side. Then हाँ, सो लाइक हमारे पास ये है, कॉटलिन है। अब हमें मतलब कुछ भी डाइस रोलर ऐप बनाना है हमें, ठीक है? तो उसके लिए हमें कुछ भी रैंडम नंबर्स, हमारे मतलब जिंदगी में बहुत सारे ऐसे होते हैं चांसेस जहाँ हमें कोई भी रैंडम नंबर चाहिए होता है, लाइक पासवर्ड जनरेटर, फिर इस सब में रैंडम नंबर यूज होते हैं। तो रैंडम हम अपने इसमें कैसे बना सकते हैं, लाइक वेर एक्स इक्वल्स टू 5। सो ये फंक्शन क्या करेगा कि 1 से लेके 5 के बीच में जो भी रैंडम नंबर होगा वो हमें दे देगा। ठीक है, 1 5 और बीच में 2 डॉट्स। ठीक है, ठीक है, हमें 1 से लेके 5 के बीच में जो भी रैंडम नंबर होगा एक, वो हमें दे देगा और वो उसकी वैल्यू x में असाइन हो जाएंगी। लेट्स प्रिंट x एंड सी व्हाट रैंडम नंबर वी गेट। ओके, नॉट दिस। इसमें देखते हैं क्या है। पहल ये ऐसे ही दे रहा है, 1 मिनट। Okay, so like anyone know why here it's like this behavior? लाइक वैल एंड वॉर में वैसे मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, ये मतलब उसी में होता है। लाइक वैल्यू जो वैल होता है उसमें हम वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, और वैर में वेरिएबल होता है, ये हम वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं। सो कैन यू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप टू शेयर लिंक एंड एल्स, लाइक व्हाट पर देयर इज लाइक टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ग्रुप वेयर वी कैन मतलब जहाँ सारे लिंक्स वगैरह शेयर होते हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप इज लिटिल लाइक बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब नोटिफिकेशंस वगैरह बहुत आते हैं और इट्स लाइक उसके लिए फिर नंबर चाहिए होता है। ओके ओके। टेलीग्राम ग्रुप लिंक कोई से मतलब जनरेट करके भेज दो टेलीग्राम ग्रुप लिंक। हाँ, सो ये एच आई की हमें रेंज दी है, मतलब 1 से लेके 5 के बीच तक की रेंज मिल गई है हमें। तो हम इसमें एक वेर बाय बना सकते हैं जो कि एच डॉट रैंडम इनिशियलाइज्ड। ओके, पता नहीं क्यों इतने एरर दिखा रहा है इस टाइम। अरे यहाँ इक्वल टू साइन यूज होगा। हाँ तो देखो एच डॉट रैंडम करा, लाइक इस जो रेंज है ये हमारे एच है और इसमें कोई भी रैंडम वैल्यू उठा लेगा। तो डॉट रैंडम करें तो इसमें से कोई भी रैंडम वैल्यू होगी जो वो उठा लेगा। फिर से रन करते हैं तो अब देखो इसने 5 उठा लिया, पहले 1 उठाया था। फिर से करते हैं तो अब 4 उठा लिया, 3 उठा लिया। अब सो वेल एच, तो ये एच हमारा रेंज सेलेक्ट होगा। फिर वाई, वाई हमारा एच के अंदर जो भी रैंडम वैल्यू हम उठा लेंगे वो वाई में असाइन हो जाएगी। तो प्रिंट वाई करेंगे तो हमारे कोई भी रैंडम वैल्यूज आ रही हैं इधर, लाइक देखो कोई रैंडम आती रहेंगी जितनी बार। तो ऐसे मतलब ये जो हमारा फीचर है ये बहुत जगह यूज होता है, लाइक डाइस रोलर ऐप में ये यूज हो जाएगा, और भी लाइक पासवर्ड जनरेटर, और भी बहुत जगह ऐसी चीजें यूज होती हैं। ठीक, देन लाइक क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ओके सो क्लास, तुम सबको पता है क्लास क्या होता है। लाइक क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है कोई भी मतलब चीज की। कहाँ गया कॉटलिन प्लेग्राउंड। अच्छा, लाइक हमने यहाँ क्लास बनाया व्हीकल, क्लास व्हीकल है, इसके अंदर हमने कुछ भी लाइक इसका एट्रीब्यूट दिया। लाइक एक क्लास व्हीकल है, मान लो कुछ, बस क्लास व्हीकल है, उसके अंदर हमने वेर, अच्छा व्हीकल में क्या क्या होता है, टायर्स होते हैं। ठीक है, हम लाइक टायर्स के नंबर देंगे। लाइक हमारे पास टायर्स के नंबर 4 है। देन वी हैव वेयर सीट्स, हमारी सीट्स 5 है मान लो। ठीक है, तो ये क्लास है, ये एक मतलब कुछ भी जो रियल वर्ल्ड थिंग है उसका एक ब्लूप्रिंट होता है। लाइक व्हीकल हमारी एक व्हीकल होती है जो भी, उसमें टायर्स होते हैं, सीट्स होती हैं। अब मान लो हमारा जो मेन फंक्शन है इसमें हमें मतलब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। लाइक व्हीकल है, इसकी व्हीकल एक पूरा मतलब व्हीकल के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लाइक कार आ सकती है, स्कूटर आ सकता है, फिर लाइक स्कूटी आ सकती है, बुलेट आ सकती है, बहुत कुछ है। तो हमें मान लो एक ऑब्जेक्ट बना लिया कार, जो कि व्हीकल का है। अब व्हीकल हमारा क्लास है तो इसमें हम पैरेंथेसिस नहीं देंगे, पर यहाँ हम जब भी इसे मतलब इसको कॉल मतलब इसको जब भी हम इसका रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब इसमें ऐसा बनाते हैं। ठीक है, इसमें पैरेंथेसिस देते हैं। हमारा कार है जो कि व्हीकल है, कार हमारी, इसके टायर 4 होंगे, ये 5 होंगे। तो लेट्स प्रिंट प्रिंट कार डॉट टायर्स। तो देखो ये जो भी चीज है ये उसकी प्रॉपर्टी है व्हीकल की।
तो ये जो कार है, कार के थ्रू हम इसके ये सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कार डॉट टायर्स करा जब हमने, तो इसके हमारे टायर्स आ जाएंगे हमारे पास इसके। देखो, प्रिंट कार डॉट टायर्स करा तो टायर 4 आ गया, लाइक 4 आ गया इधर, क्योंकि हमने यहाँ सिलेक्ट करा हुआ था। मान लो अब हमने यहाँ कुछ नहीं दिया है, ठीक। और हमें अब बताना है कि लाइक हमने यहाँ फंक्शन बना दिया है, एक फंक्शन गेट टायर नम। सो ये टायर्स तो दे देगा। देखो, हमारे पास मान लो ये फंक्शन है गेट टायर नम, जिससे हम मतलब टायर का नंबर ले लें, मतलब कितने टायर्स है हमारे पास। अब हमने जैसे कार व्हीकल बनाया जो, अब हम ये जो फंक्शन है, लाइक ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। हम क्लास के ऑब्जेक्ट की वजह से ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने मतलब इसको बता दिया है कि ये जो व्हीकल है इसका टाइप है ये कार। तो कार डॉट करके गेट टायर नम में हम इसमें 5 डाल सकते हैं, लाइक हमारे पास 5 टायर की वो है, व्हीकल है, ठीक है, 5 टायर की कार है। अब हमने मतलब यहाँ क्या करा, ये यहाँ पे गया। अब ये क्लास है, क्लास की ये जो टायर्स हैं ये तो ये एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये सेम क्लास में है, ठीक है। तो ये टायर्स में हमने एच डाल दिया, जो हम यहाँ पे, यहाँ से जब हमने 5 भेजा तो यहाँ 5 आया। 5 अब यहाँ से टायर्स के अंदर चले गया, तो इसकी अब वैल्यू है वो 5 हो गई। अब हम यहाँ से प्रिंट कार टायर्स करते हैं तो हमारे पास 5 आएगा, देखना एक मिनट। TYR देखो, हमने मतलब वो ये है कि मतलब जो एडवांस कॉटलिन है उसमें मतलब हम ऐसे होता है उसमें। एक मिनट में स्क्रीन सबको विजिबल है? हेलो, व्हाट अबाउट वेल एच रैंडम 1 to 5? हाँ, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो जाएगा, हाँ। हाँ, आगे मतलब डाइस रोलर जो ऐप है उसमें जो भी मतलब उन्होंने बना के दिखाया हुआ है, तो उसके थ्रू जाओगे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने लग जाएंगे, और कि मतलब कैसे कैसे है। लाइक उसमें क्लास के बारे इतना डीप में नहीं बताया है, तो मतलब वो तुम्हें थोड़ा समझ नहीं आएगा। वो मतलब यहाँ देख लो, लाइक क्लास है, ब्लूप्रिंट होता है वो कोई भी चीज का, ठीक है। तो इसमें गेट टायर्स नम करा है हमने, तो टायर्स में हमारा एक्स आ गया। लाइक हमारा पहले टायर की वैल्यू 1 थी, हमने कार डॉट टायर्स नम करा, इसमें 5 भेजा, तो ये 5 है जो ये टायर्स में चले गया। तो हमारी अब टायर्स की नई वैल्यू कार के लिए 5 हो गई, ठीक है। अब मान लो हमने ऐसे ही नया ऑब्जेक्ट बनाया व्हीकल का, जो कि हमारी बस, ठीक है। अब हमने करा, हमने बस डॉट टायर करा मान लो, ठीक है। अब लाइक हमने बस के लिए तो कोई मतलब ऐसे गेट टायर नंबर करानी है, तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये 1 है, तो ये ही कॉल होगी, मतलब ये ही प्रिंट होगी, ठीक है। टायर्स होगा लाइक 5 देन 1, ठीक है। 5 इसके वजह से प्रिंट हुई, लाइक इसको हटा देते हैं तो 1। सो मतलब बस में हमने कुछ भी नहीं दिया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो यही रहेगी। लाइक जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लास, तो जैसे व्हीकल है, व्हीकल एक क्लास है, क्लास तो ब्लूप्रिंट होता है ना। ब्लूप्रिंट लाइक कुछ भी ऑब्जेक्ट का, अब उसके ब्लूप्रिंट के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जो ब्लूप्रिंट है उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो अपने मतलब उसकी प्रॉपर्टीज अपनी अपनी होंगी। जैसे जो बस है उसमें सीट्स जो होती हैं वो हमारी लाइक 50 60 होंगी, और कार में 5 सीट्स होंगी।
तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो हम प्रॉपर्टीज उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम करते हैं बस डॉट सीट्स इक्वल टू 10 कर दिया हमने। यहाँ में हमने बस की जो सीट्स है वो हमने 10 कर दी, ठीक है, ये नहीं लगता है, ठीक है, हमने बस की सीट्स हैं जो 10 कर दी हैं। तो हम बस सीट्स हम करके देते हैं, क्या देगा अब, देखो 10 दिया इसने, क्यों, क्योंकि हमने बस की सीट है जो 10 कर दी, तो ये जो सीट है ये बस के लिए 10 हो गई है। और यही हम फॉर कार इक्वल टू व्हीकल करेंगे। तो ये हमने यहाँ देखो कार के लिए कोई मतलब सीट नहीं बनाई है, तो कार के लिए ये वैल्यू यहाँ अभी भी 5 ही है, पर बस के लिए 10 हो गई है एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो ऐसे मतलब ब्लूप्रिंट्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो अपनी अपनी जो प्रॉपर्टीज है, लाइक अपने अपने ये कुछ भी जो भी डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस है, इन्हें डाटा मेंबर्स कहते हैं, और ऐसे फंक्शंस को डाटा फंक्शंस कहते हैं, मेंबर फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो इसके अपने 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 ऑब्जेक्ट्स इस पूरे मतलब चीजों को अलग अलग अपने लिए डिसाइड कर सकता है कि हमें ये चीज ऐसे चाहिए, ठीक है। इन कॉटलिन समटाइम्स वी यूज अच्छा, मतलब कॉटलिन में सेमीकोलन लाना जरूरी नहीं है, मतलब सेमीकोलन तुम ला सकते हो। लाइक मुझे सी प्लस प्लस में कॉम्पिटेटिव और मैं मतलब ज्यादातर कोड करता हूँ, तो मुझे सी प्लस प्लस के लिए उसकी वजह से मुझे सेमीकोलन की आदत है, पर लाइक तुम नहीं ला सकते, जरूरी नहीं है कॉटलिन में लाना सेमीकोलंस। The function in place of class is just separated बोलिए, should not be used just, we have used just another function in place of class। मतलब देखो क्लास इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लाइक जो भी रियल वर्ल्ड के में काम होता है ना, वो सब क्लास बेस्ड पे होता है, लाइक क्लास की वजह से होता है। उसमें मतलब हैवी क्लास का यूज होता है, और मतलब जैसे सी प्लस प्लस या सी तो आगे कॉलेज में भी पढ़ोगे, तुम्हें आगे क्लास बारे पढ़ाएंगे। मतलब लाइक सी में क्लासेस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, पर सी प्लस प्लस में क्लास का कॉन्सेप्ट होता है। तो वो तुम्हें सेकेंड ईयर में पढ़ाएंगे क्लास का कॉन्सेप्ट। और तुम जैसे भी मतलब कोई भी एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, हर जगह क्लास यूज होनी ही होती है, क्योंकि ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है क्लास। और अभी तो जैसे छोटी सी क्लास बनी हुई है, लाइक आगे जाके जो रियल वर्ल्ड जो भी मतलब एप्स वगैरह बनते हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी क्लास होती हैं, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें मतलब क्लास की वजह से हम यूज कर सकते हैं। जो भी मतलब मॉडर्न प्रॉब्लम्स हैं वो सब की वजह से टैकल हो जाती हैं आराम से। Till when we can continue session? Okay, we are already ahead of time, okay, so मतलब ओ मतलब थोड़ा सा देख लो, 10 मिनट और देख लो फिर चले जाना। सो लाइक ये वैसे ही डाइस रोलर ऐप है, तो ये देखो इसमें भी इन्होंने क्लास बना के दिखाई है, ठीक है, क्लास जिसमें साइट्स है सेट्स, और ऐसे ही इन्होंने माई फर्स्ट टाइप्स बनाया है, तो उसकी साइट्स प्रिंट कराई जो कि आई 6 हमारे पास, ठीक है। हाँ, अब जैसे कहाँ गया प्लेग्राउंड मेरा, ठीक। अब हमारे पास मान लो डाइस वाला ही है, मान लो, ठीक है। अब डाइस वेयर साइड्स होती है, मतलब डाइस में जो भी ये प्रॉपर्टी होती है वो एक साइड होती है, ठीक है। तो साइड हमारे पास मान लो 6 है, मतलब हाँ, ठीक है। अब हमने बना लिया वेयर माई डाइस 1, ठीक है। इसमें हमने डाइस का रेफरेंस दे दिया, लाइक ये डाइस का ऑब्जेक्ट है माई डाइस 1, ठीक है। एक हमारे पास डाइस है। अब हम इसका अगर हम माई डाइस 1 डॉट साइड्स करेंगे तो 6 प्रिंट होगा, ठीक है। अब मान लो हमने यहाँ कर दिया 1 डॉट डॉट 6, ठीक। अब हमने प्रिंट करा साइड्स डॉट रैंडम,
my dice one dot, ये देखो, ये माई डाइस डॉट साइड्स है, तो ये वाला एक्सेस हो गया। अब इसमें जो भी हमें रैंडम वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अभी हमें 6 मिला है। अब हम फिर से करें, अब हमें 1 मिल गया। अब फिर से करें तो हमें 3 मिल गया। तो ऐसे हमारा देखो एक डाइस बन गया, जो हम ऐसे मतलब कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग बना सकते हैं, हम अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है, इसमें लाइक साइड्स 6 हैं। और ये जैसे मतलब मैंने फंक्शन बना के दिखाया था, हम रोल की वजह से लाइक रोल है जो कहाँ गया, लाइक हमारे पास क्लास है, इसमें हमने फंक्शन बनाया है एक रोल का, जो हमारा रोल करेगी चीजें। तो ये चीज हम यहाँ भी कर सकते हैं, प्रिंट साइड्स डॉट रैंडम, या हमने सीधा करा माई डाइस वन डॉट रोल। हमने यहाँ रोल को कॉल कर दिया है, ठीक है, माई डाइस की वजह से रोल को कॉल कर दिया है। तो ये वाला इसमें से कोई भी रैंडम वैल्यू उठा के प्रिंट करवा देगा हमें। तो ये देखो रैंडम वैल्यू 4 आ गई। तो ऐसे ही हमारे मतलब रोल हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा डाइस रोलर ऐप इस मतलब इस कॉन्सेप्ट पे बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो लाइक ये तुम्हें पढ़ के अब समझ आ जाएगा कि क्या क्यों लिखा है यहाँ पे ये सब, ठीक है। अब मान लो लाइक हमारे कोई लकी वैल्यू है, कहाँ गया, हाँ, मान लो हमारे पास कोई भी लकी वैल्यू है, ठीक है, लाइक वेर लकी वैल फर्स्ट टू 4, हमारे मतलब जो भी लकी वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। और हमने यहाँ इफ कंडीशन लगा दी, इफ जो हमारा साइड्स पहले हम एक में ले लेंगे, लाइक वेर x इक्वल्स टू साइड्स डॉट रैंडम। ये देखो जैसे ये है हमारे पास अब, लाइक अगर हमारा लकी वैल्यू हमने 4 सेट कर रखी है, अगर हम इसे रोल करते हैं तो जो भी मतलब साइड्स डॉट रैंडम है वो हमारा एच में चलेगा एक ही बार में, ठीक है। जो साइड्स डॉट रैंडम ये हमारा एच में चलेगा। अब हम एच को देखेंगे, जो हमारी वैल्यू है वो क्या हमारे 4 के इक्वल है। अगर वो 4 के इक्वल है तो हम ये प्रिंट करेंगे इफ के स्टेटमेंट से। नहीं तो अगर ये मतलब इक्वल नहीं है इसके, ये अगर हमें फॉल्स देता है तो हम ये वाली एल्स पार्ट में जाएंगे, तो ये वाली वो स्टेटमेंट होगी, एक मिनट, फंक्शन रोल रिजॉल्व रैंडम, ओके व्हाई सो मच टाइपोस। ये देखो हुरे लकी नंबर, हमारा मतलब यहाँ पे 4 आया था, इसलिए हमारा हमारे एच में मतलब जो भी हमें रैंडम नंबर मिला वो हमारा 4 आया था, इसलिए हमारा ये कॉल हो गया, ठीक है। अब फिर से करके देखते हैं, एच बार बार क्या लकी नंबर क्या आ रहा है। देखो अब हमारा हमने फिर से ट्राई करा तो हमारा मतलब कुछ और नंबर आया है, तो इसलिए ये ट्राई अगेन है, ठीक है, क्योंकि हमारा 4 नहीं आया, कुछ और आया इस बार, ठीक है। फिर से 4 आया। So sir, can this class will end because I have to join another class at 7:30. Explain bit in detail the difference between using specifically fun and class. Uh,
ओके सो मतलब देखो फंक्शन जो है वो हमारा मतलब कुछ भी टास्क करेगा। फन टास्क लाइक इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो फंक्शन के हम अंदर हम क्लास नहीं बना सकते, पर क्लास है जो क्लास में हम फंक्शन बना सकते हैं, डाटा मेंबर्स दे सकते हैं, ठीक है। इसके फंक्शन में हम कुछ भी करवा सकते हैं, तो क्लास एक ब्लूप्रिंट है कुछ भी ऑब्जेक्ट का। पर फंक्शन के थ्रू हम खाली मतलब कुछ भी स्पेसिफिक टास्क करवाते हैं, हम कुछ और नहीं करवाते हैं, ठीक है। ये हमारा मतलब ब्लूप्रिंट नहीं है। हम मतलब जो हमारा फंक्शन है उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते। लाइक जो हमारा टास्क है इसका हम अलग अलग ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं दे सकते ना। लाइक हमारा लाइक टास्क है उसके लिए हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले लें, चाहे मतलब हमारा जैसे व्हीकल एक फंक्शन हो गया, तो इसका हम कार स्कूटर वगैरह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं ले सकते, पर हम क्लास के ले सकते हैं। ये मतलब धीरे धीरे करोगे तुम्हें समझ आने लग जाएगा। मतलब वही है ना, एक्सपेरिमेंट पार्ट जब हम असली में तो से कोडिंग करेंगे ना, तो हमें ये सब क्लियर हो जाएंगी कि ये चीजें क्यों हैं और कैसे हो रही हैं ये चीजें, ठीक है। ओके 7:30 पे तुम्हारी क्लास है तो तुम जा सकते हो। मतलब ये जो भी है इससे तुम्हारा मोस्टली पाथवे 4 भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। हाँ सो ये सब हमने पहले ही कर गया था, प्रेरित एलन वगैरह ये सब कर लिया था। ये एक मतलब तुम्हें कंस्ट्रक्टर होता है, लाइक क्लास में भी अगर तुम्हें कोई वैल्यू भेजनी होती है तो ये डाइस 20 ऐसे करके भेज देते हैं। अच्छा लाइक ये देखो जैसे क्लास है, ठीक है, इसमें हमने पहले से कोई वैल्यू भेजनी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके अंदर मान लो हमने 4 भेज दिया, ठीक है। तो ये वेर साइट्स ऑफ इंट, तो हमने यहाँ भी मतलब लेने के लिए कुछ दे दिया यहाँ से हमने, क्योंकि यहाँ से कुछ भेजा है तो यहाँ भी हमने लेने के लिए जो चाहिए, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर होता है, ये मतलब दूसरी लैंग्वेजेस में कुछ और वे से मतलब डिसाइड होता है, कुछ और वे से मतलब इम्प्लीमेंट होता है, पर इसमें इसी में हो जाता है, लाइक पैरामीटर्स में हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास ये साइट्स आ गई इसकी, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सिट्स की जगह साइट्स ले सकते हैं सीधा। यहाँ पे सिट्स भेजा, ये हमारे पास इसमें सिट्स आया, तो हम यहाँ पे सीधा सिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 to 6 करके हमारे पास चीजें आ जाएंगी। देखो या तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, लाइक 1 to 6 है हमारे पास, उसमें कुछ भी हमें रैंडम वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब हम सिट्स की जगह साइट्स ले सकते हैं सीधा, ठीक है। 1 से लेके साइट्स के बीच में हमें कुछ भी रैंडम वैल्यू चाहिए। देखो ट्राई अगेन करा क्योंकि हमारे कुछ और वैल्यू मिली, यहाँ वैल्यू भी प्रिंट करवा देते हैं। तो ट्राई अगेन क्योंकि हमारा 1 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ साइड भेजा, लाइक डाइस है हमारा 6 साइड्स का है, वैसे ही हमारा लाइक माई डाइस 2 हो सकता है एक, ठीक है 2 होगा। तो इसमें हम लाइक डाइस भेजा हमने, इसमें हमारे कितनी साइड्स होंगी, मान लो हमारी 10 साइज है उस डाइस में, तो हमने यहाँ ऐसे साइज भेजा है। तो मान लो हमने डाइस 2 को भी रोल करा, ठीक है, डॉट रोल। देखो पहले ये हो रहे लकी नंबर आया 4 हमारा आया था, फिर ट्राई अगेन 2 आया। पहले क्योंकि इसको करा लाइक फिर से करके देखते हैं, हमारा मतलब 6 से ऊपर कोई नंबर आए तो फिर तुम्हें मतलब सीधा समझ आएगा क्यों हो रहा है ऐसा। Italian करते हैं।
ये देखो, फिर से करते हैं एक बार। हाँ देखो, ट्रैगन्स 3 आया, फिर ट्रैगन 7 आया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बस हमने साइड 6 रख दी है, तो ये बस 1 से लेके 6 के बीच में एक रैंडम वैल्यू निकालेगा। हमने यहाँ 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 आएगा, साइड्स की वैल्यू 10 होगी, तो 1 से लेके 10 तक के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू निकालेगा ये। ठीक है। वर्कशीट मतलब तुम वही है ना, मतलब वो जो भी यहाँ है, अ, ये जो भी कोर्स है इसके मतलब ये करोगे तो ये मतलब पूरा तुम्हें समझ आ जाएगा आपकी मतलब क्या क्या क्यों क्यों लिखा है। ठीक है, ये सब तुम्हें समझ आ जाएगा आप। मतलब इसी यही एक तरफ से वर्कशीट हो गई तुम्हारे लिए। और मतलब कोटलिन प्लेग्राउंड पे तुम इम्प्लीमेंट करके देखोगे और ऐसे प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें सब समझ आने लग जाएगा। फिर ऐड कंडीशनल बिहेवियर वगैरह भी समझ आ जाएगा, क्योंकि वैन वाला हमने पढ़ ही लिया है। फिर ऐड इमेज टू अ डाइस रोलर ऐप, ये थोड़ा सा रह गया है, एंड ऑलरेडी वी आर अहेड ऑफ टाइम। सो मतलब सेशन आज खत्म करते हैं। एक बार खुद भी मतलब फॉर प्रैक्टिस बेसिक इसी की लिंक, मतलब इसकी लिंक तो वैसे मतलब प्रोवाइड कर रखी है मैंने, क्योंकि मतलब ये वाला करना तो जरूरी है। लाइक इसी से तो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, इसी से तो मतलब तुम्हारा लाइक ये सब तुम पैचेस अर्न कर लोगे। इसमें जो भी है ये सब तुम कर लोगे कोर्स पूरा। एक मिनट साइन इन कर देता हूँ। मतलब असली में यही चीज तो करनी है, जिससे मतलब हमारा एंड्रॉइड स्टडी कैम्प का जो पूरा वो होगा, पूरा हो जाएगा वो।